لیکن آج پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ سب باتیں کی جاتی ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ہمارا وہی تاجر آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے، آپ کو ٹیکس دے، آپ کی یہاں پہ جاب کریٹ کرے، اس کے بعد اس کو ملتا کیا ہے؟ دھمکی، مارنے کی دھمکی۔ اور پھر وہی جو ان کا ہوتا ہے بدتمیزی، قتل کی کلی دھمکیاں، قتل کی، کس روٹ سے تم آتے ہو، کتنے بجے آتے ہو، یہ سب بتایا گا۔ پریزیڈنٹ الطاف میمن ہے، ان کے ساتھ جو بھی تھریڈ ہوا یہ قابل مذمت ہے اور فوری اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ میں حیدرآباد چیمبر کے صدر الطاف میمن صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان پہ پراؤڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھتہ خوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جارحانہ اقدام اٹھایا۔ ایک بہترین فضا پرووائڈ نہیں کی جا رہی جس کے اوپر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے امجد شیخ صاحب SSP صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس معاملے کو جو ہے فوری جو ہے اپنے ہینڈ اوور کیا جائے اور جو اس میں ملوث ہے بھتہ خور انہیں فوری گرفتار کیا جائے۔ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر محمد الطاف میمن کی صدارت میں مجلس عاملہ، کنوینئرز، سب کمیٹیز اور حیدرآباد کی مختلف تاجر تنظیموں، انجمنوں کا ہنگامی اجلاس چیمبر کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام تاجروں نے نیو سبزی منڈی حالہ ناکہ کے تاجروں کو اور خاص طور پر صدر چیمبر الطاف میمن کو بھتہ نہ دینے پر قتل کی دھمکیاں دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے DIG حیدرآباد رینج پیر محمد شاہ اور SSP حیدرآباد امجد شیخ سے فوری صدر چیمبر الطاف میمن کو پولیس سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر چیمبر نے کہا کہ نیو سبزی منڈی حالہ ناکہ کے تاجر جو چیمبر سے بھی وابستہ ہیں انہیں جرائم پیشہ افراد کی جانب سے مسلسل بھتہ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں قتل و سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سبزی منڈی میں جرائم پیشہ افراد منشیات کا کاروبار کھلے عام کر رہے ہیں جس کی روک تھام کے لیے مارکیٹ انتظامیہ سمیت پولیس و رینجرز کوئی عملی کارروائی نہیں کر رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں گزشتہ دنوں 2 کال موصول ہوئیں جس پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور انتہائی غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی۔ انہوں نے ہٹڑی تھانے میں دھمکیاں دینے والوں کے خلاف FIR بھی درج کروا دی ہے۔ صدر چیمبر نے کہا کہ منڈی کو منتقل ہوئے 1.25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، جبکہ تمام تاجروں سے انتظامیہ ماہانہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ انتظامی امور کی مد میں لیتی ہے لیکن پھر بھی بھتہ خوری روکی نہیں جا رہی، نہ ہی منشیات بیچنے والوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی شکایت کئی مرتبہ پولیس انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے بھی کی جا چکی ہے۔ اجلاس میں سابق صدور، مجلس عاملہ، کنوینئر سب کمیٹیز اور تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے سخت الفاظ میں انتظامیہ کے اس رویے پر مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ جلد از جلد نیو سبزی منڈی حالہ ناکہ میں رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے اور بھتہ مافیا و منشیات مافیا کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور جو ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو بھی جلد پورا کیا جائے، نہیں تو سبزی منڈی کے تاجران دوبارہ پرانی سبزی منڈی حالی روڈ پر منتقل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اجلاس میں سابق صدور دولت رام لوہانہ، اکرم انصاری، اراکین مجلس عاملہ محمد عارف میمن، شفقت اللہ میمن، چودھری محمد اسلم، نعیم شیخ، شیخ احمد حسین، کنوینئر سب کمیٹیز یاسین خلجی، جلال الدین قریشی، ڈاکٹر عبدالجبار راجپوت، سکندر راجپوت، فرحان اقبال، شوکت علی، وسیم قریشی، سہیل قریشی، جاوید قریشی، ڈاکٹر شریف پنجانی، ڈاکٹر یوسف، رمیز الدین، محمد الناصر، یونس ملک، سہیل میمن، ایوب شیخ، مختلف تاجر تنظیموں، مارکیٹوں کے عہدیداران موجود تھے۔ یہ ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں اور آج مذمتی اجلاس تھا۔ پریزیڈنٹ آف حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے پریزیڈنٹ کو قتل کی دھمکی دی گئی بھتہ خوروں نے، تو اس کی ہم لوگ پرزور مذمت کری ہے اور تمام یہاں پہ آج اجلاس ہوا تھا اس سلسلے میں سبوں نے پرزور انداز میں اس کی مذمت کری ہے اور اس طرح کا کہ اور ہم ایز اے بزنس کمیونٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو جو ہے پروٹیکشن دی جائے، انہیں پولیس موبائل دی جائے تاکہ یہ آزادانہ طور پہ آ جا سکیں اور وہاں پہ پولیس کی نفری بڑھائی جائے تاکہ اس طرح کے پھر واقعات نہ ہوں۔ حیدرآباد چیمبر کے اندر ایک مذمتی اجلاس رکھا گیا جو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اب حیدرآباد کے تاجروں کو مارنے اور دھمکانے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور بھتہ وصول کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ بڑا المیہ ہے۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں حیدرآباد کی انتظامیہ سے، حیدرآباد کی پولیس سے کہ وہ ان مسائل کو دیکھیں اور آج جو حیدرآباد چیمبر کے اندر جو لوگوں کے اندر غم و غصہ تھا اور جو پورے حیدرآباد شہر کی چیدہ تنظیمیں لوگ یہاں پر موجود تھے اور کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا اسٹیپ جو اٹھایا ہے ہمارے پریزیڈنٹ نے تو اس کو دیکھا جائے، ورنہ پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اور حالات خراب ہونے کی طرف ہی جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات کو آپ کی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، آپ انہیں دیکھیں۔ آج ہمارے چیمبر حیدرآباد اسمال چیمبر میں
एक इजलास, हंगामी इजलास मुनक़द किया गया, जिसका वन एजेंडा था कि हैदराबाद में दोबारा ये भत्ताखोरी शुरू हम होने नहीं देंगे। मैं यहाँ सबको बताता चलूँ, ये जो सब्ज़ी मंडी जिसके लिए बड़ी कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको शिफ्ट किया जाए, जो कि वहाँ पे जब शिफ्ट की गई वहाँ के हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन सब्ज़ी मंडी के ताजरों ने एक ही मुताला किया था कि हमें सिक्योरिटी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आप सब ने उनको गारंटी दी कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, जो कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन उसको स्लोली करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी भी आपको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी ताकि आप अपना कारोबार बिला किसी खौफ से कर सकें। लेकिन आज फिर ये साबित हुआ कि ये सिर्फ बातें की जाती हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता। हमारा वही ताजर, हैदराबाद का ताजर, आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, आपको टैक्स दे, आपकी यहाँ पे जॉब क्रिएट करे, और उसके बाद उसको मिलता क्या है? धमकी, मारने की धमकी। सर कितने और इस तरह के हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे? क्या हम हैदराबाद छोड़ के चले जाएं इस डर के मारे, हम अपना कारोबार बंद कर दें? ये कब हमारी गवर्नमेंट जो हैदराबाद के मेन इदारे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, हैदराबाद के बाद एक और साजिश दोबारा हैदराबाद के लिए की जा रही है। वैसे ही हमारा हैदराबाद तबाह किया गया है सियासी चक्करों में, एक बार फिर इस रविश पे आ गए हैं। आज ये सब्ज़ी मंडी पहुँचे हैं, कल ये अनाज मंडी पहुँचेंगे, शाही बाज़ार पहुँचेंगे, रेशम बाज़ार पहुँचेंगे। क्या बार बार ये होता रहेगा हमारे साथ? लिहाजा आज के इजलास में हमने भरपूर इसकी मजम्मत की है और हम ये वार्न कर चुके हैं कि इसको फौरी बंद होना चाहिए, वरना पूरे हैदराबाद के जितने भी ताजिर हैं सड़कों पे एहतियात करेंगे। आज ही न्यूज़ आई है कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स जनरेट कम हुआ है। उस तरफ तो बड़ी आपकी कैलकुलेशन होती है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। इस तरह टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता। एक सब्ज़ी मंडी जो पूरे सिंध को लीड कर रही है, वहाँ जाने से कारोबार बढ़ा है, वहाँ पे लोगों की मजदूरी बढ़ी है, आपके हैदराबाद का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आखिर में फिर वही धमकी। तो लिहाजा ये मेरी गुजारिश है तमाम कि आप मेहरबानी करके हैदराबाद को तबाह ना करें, इसको फलने दें, इसको फूलने दें भाई, यहाँ पे ताजिर अपने सुख से काम कर सके। इस तरह बंद हो गए अगर कारोबार तो बड़े मसाइल क्रिएट होंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे और ख़ास करके हैदराबाद की पूरी ताजिर बरादरी को मुखातिब होना चाहता हूँ, आप सब ने खड़ा होना है, अलर्ट रहना है। आज सब्ज़ी मंडी की बात नहीं है, ये हमारे हैदराबाद की बात है, कल आपकी जगह भी हो जाएगा। आप सब ने खड़ा होना है। अगर इंतज़ाम हमारे साथ नहीं सही हुआ तो मैं भी हम स्टेप उठाएंगे, और इसलिए आप सब ताजिर बरादरी को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर मौजूद हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज इस मज़ामती इजलास में हम शरीक हुए, जिसमें हाजी अल्ताफ़ मेमन सदर सब्ज़ी मंडी को जो धमकियां दी गई इस सिलसिले में हम आए, और इस मज़ामत में हम भरपूर इनके साथ हैं और हर किस्म के ताउन के लिए अनाज मंडी इनके साथ है। ये किसी किस्म की घबराहट महसूस नहीं करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रीम बिज़नेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, और इस वक्त ये चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और सब्ज़ी मंडी के भी सदर हैं। तो एक क्रीम हैसियत में इनको इस किस्म की धमकी देने वाले कैसे इस माशरे में रह सकते हैं कि जो हमें डरा कर हमसे अपने फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करें? हम ये नहीं होने देंगे। पूरे हैदराबाद की ताजिर बिरादरी, ताजिर कम्युनिटी और हर किस्म के ताउन के साथ अल्ताफ़ भाई के साथ हैं। इंशाअल्लाह अनाज मंडी में अल्ताफ़ भाई के साथ है, पूरे हैदराबाद के क्रीम भी अल्ताफ़ भाई के साथ है, और इनसे भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। सब्ज़ी मंडी में ये वाक़या हुआ है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिस तरीके से बत्ताखोर दहशतगर्दी वहाँ हो रही है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जिस तरह से अल्ताफ़ मेमन जो प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री के, उनके साथ जो वाक़या हुआ है, उनको थ्रेट की जा रही है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हम इंतज़ामिया से भी पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करें और ताजी बिरादरी के मसले मसाइल वहाँ पर जो भी हैं वो उनको हल करें। मैं हैदराबाद चैम्बर के सदर अल्ताफ़ मेमन साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और उन पर प्राउड करता हूँ कि उन्होंने बत्ताखोरों की आंखों में आंखें डालकर जाराना इक़दाम उठाया। इससे ताजिर बिरादरी को एक हौसला मिलता है, क्योंकि ताजिर बड़ी मुश्किल से
अपना कारोबार करता है उस पर भत्ता खोर आ जाए और भत्ता मांगे तो ये ताजिर के साथ ज़्यादती है। और मैं एसएसपी हैदराबाद को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जाराना इकदाम उठाते हुए उनमें से एक शख्स को गिरफ़्तार भी कर लिया और उनसे उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए ताकि ताजिरों के अंदर जो बेचैनी है वो ख़त्म हो। कल जो अनाज सब्ज़ी मंडी में वाक़या पेश आया है जिस पे सब्ज़ी मंडी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो काबिल मज़म्मत है। मैं क्रिमिनल्स को वार्न करना चाहता हूँ। ताजर शरीफ लोग हैं लेकिन अपना दिफा करना जानते हैं और ताजर रहनुमा जनाब अल्ताफ़ मेमन साहब ने जो दिलेराना कदम उठाया है वो काबिल तारीफ़ है और पूरी हैदराबाद की ताजर बिरादरी उनके साथ खड़ी है। मैं इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ कि ये जराइम पेशा और क्रिमिनल लोगों को लगाम दी जाए, अदरवाइज़ ताजर बिरादरी पूरा हैदराबाद का पहिया जाम कर देगी और वहाँ पे नफली में इजाफा किया जाए ताकि ताजर पुरअमन तरीके से अपना कारोबार कर सके। कल जो वाक़या हुआ है जनाब अल्ताफ़ मेमन साहब के साथ सब्ज़ी मंडी के अंदर जो इनको जो है थ्रेट किया गया है और इनसे जो है तावान की सूरत में जो है पैसे तलब करने का जो है उन्होंने फ़ोन किया, मैं तमाम इदारों को ख़ास तौर पे आईजी सिंध पाकिस्तान, आईजी सिंध कराची और डीआईजी साहब को पीर मोहम्मद शाह से और हमारे अमजद शेख साहब एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले को जो है फौरी जो है अपने हैंड ओवर किया जाए और जो इसमें मुलविस हैं भत्ताखोर उन्हें फौरी गिरफ़्तार किया जाए। ऐसा ना हो कि हम अपने जो है मार्केटों को जो है वो हड़ताल पे चले जाएं, क्योंकि मालूम ऐसा हो रहा है कि ये भत्ताखोर जो है दोबारा से जो है वो ज़िंदा हो रहे हैं और जिस तरीके से इरफान बलोच का जो टाइम था हम उम्मीद करते हैं उसी तरीके का टाइम आना चाहिए कि कारोबारी जो है सुख का सांस ले और आराम की नींद सोएं। और हम जो है उम्मीद करते हैं कि हमारी इंतज़ामिया जो है रात को जागती है और हम लोग आराम से सोते हैं। इसी तरीके का अमल दोबारा भी किया जाए ताकि जो है हम सुकून की नींद सो सकें और बिज़नेस चल सके। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट अल्ताफ़ मेमन हैं वो सिर्फ फ्रूट मार्केट के नहीं बल्कि पूरी ताजिर बिरादरी के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ जो भी थ्रेड हुआ ये काबिल मज़म्मत है और फौरी इदारों को एक्शन लेना चाहिए। मैं इस मौके पर ऐलान करता हूं कि सिविल सोसाइटी नेटवर्क हैदराबाद का वो भी हैदराबाद चैम्बर और अल्ताफ़ मेमन साहब हमारे प्रेसिडेंट के साथ है, इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना करें। ताजिर बिरादरी का सबसे बड़ा एक मसला, दरीना मसला यहाँ से सब्ज़ी मंडी को शिफ्ट करने का वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी वहाँ पर इंतहाई शिद्दत से कमी थी। उसके बाद केस दाखिल हुए हाई कोर्ट में केस दाखिल हुए, हाई कोर्ट ने जो है उन केसों की सुना। उसके बाद जो डिसीजन दिया गया उसमें गवर्नमेंट की मशीनरी ने हम तमाम ताजिर बरादरी को जो कि सब्ज़ी मंडी में इस वक्त ताजिर मौजूद हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई कि हम आपको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, आप ओल्ड सब्ज़ी मंडी से शिफ्ट हो जाएं न्यू सब्ज़ी मंडी में। गवर्नमेंट मशीनरी ने जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम आपको एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना के देंगे ताकि आपको वहाँ सहूलत हो सके। लेकिन इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद ताजिर बरादरी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की पासदारी करते हुए उस ऑर्डर को मानते हुए अपना बिज़नेस जो ओल्ड सब्ज़ी मंडी में था उसको वहाँ शिफ्ट किया। लेकिन आज इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है कि जो हमारी ताजिर बरादरी है वो इस वक्त भत्ते के जो है हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो ताजिर बाहर से शहर के दूसरे शहरों से आते हैं उन्हें लोग तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, एक बेहतरीन फ़ज़ा प्रोवाइड नहीं की जा रही जिसके ऊपर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। और जो उन्होंने कॉल दी है वो एक, आप उसको इतनी मामूली कॉल ना समझें। अगर ये ताजिर बरादरी अगर अपने ये तमाम बिज़नेस शट डाउन कर देती है तो मुल्क का पहिया जाम हो जाएगा। इसलिए मेरी इस चैनल के थ्रू ये गुजारिश होगी तमाम अरबाब इक़्तिदार से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये कहा है कि हम ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे
اس آرڈر کی پاسداری کرتے ہوئے آپ انہیں تحفظ فراہم کریں، نہیں تو لیگل ٹیم جو ان تاجر برادری کے ساتھ موجود ہے وہ پھر ہائی کورٹ میں کنٹیم آپ تمام اداروں کے خلاف داخل کرے گی اور پھر اس کے کانسیکوینسز آپ تمام لوگ برداشت